Good evening, everyone, and Assalamu alaikum. Welcome to our session today on clinical dermatology done right in collaboration between Dawai and Sante Pharma. Today, we have with us a renowned consultant dermatologist, Dr. Afzal Lodhi. He has 30 years of experience in dermatology. He has done his MBBS, MSc, D-Derm, and he specializes in dermatology, cosmetology, and he's also a laser specialist. He is a member of Pakistan Medical Commission and he practices at the Skin Tonic Clinic Karachi, where he does hydrofacial, laser treatment, carbon facial and RF skin tightening. So we hope this session is very enriching and informative. So with that, we'll start our session. Assalamu alaikum, doctor. How are you? वालेकुम सलाम। जी तो डॉक्टर मेरा पहला सवाल आपसे होगा एलोपेशिया के बारे में, दैट्स हेयर लॉस. सो आई वांट टू आस्क कि एलोपेशिया जो है दैट अफेक्ट्स वी नो कि इट कैन अफेक्ट द स्कैल्प और इट कैन अफेक्ट द एंटायर बॉडी. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल पैटर्न baldness? Yes, first of all, thank you very much for your kind words and thanks for having me over for this session. And alopecia, generally known as hair loss, is a very common problem. And since it's a very common problem, so it has lots of myths as well and misbeliefs as well, which I will come on to later on. But it's quite common and quite common all over the world and has many causes and many different reasons like dieting, genetic, after illnesses, after strong medications like chemotherapies and stuff, after pregnancy, after hormonal issues, after severe high-grade fevers and so many things. So there are different reasons of hair loss and different causes of hair loss and different treatments for all of them. So proper cause should be looked into, what is the cause of hair loss, and then it should be treated accordingly. So yes, it's common all over the world and similarly a very common problem, distressing problem, psychologically I would say upsetting problem in especially in young girls and boys and young women. So it's quite upsetting and quite It is a disturbing psychological disorder. toll. Yeah, disturbing disorder. Yeah, so doctor, how different is male and female pattern baldness? Like the way that it starts off, the area of the head, for example, and how does one really know whether one is experiencing hair loss या hair fall? काफी बार हमें पता नहीं होता है कि normally seasonal झड़ है या फिर it's something that we should consult a doctor. हमें कैसे पता चले कि you are कब right. क्या And हो? since hair loss has no symptom, like it is not like a fever or a diarrhea जी. or a flu or any other infection which have symptoms. This is symptomless. There is no pain or burning or itching or oozing or crusting or weeping or जी. nothing like that hair loss. So simply one sees loads of hair coming off in billows and comb and hairbrush and stuff like that, and obviously then one sees thinning and balding spots and hair loss areas. So this is more visible than one can feel it. Yeah, one sees lots of hair. And first sign is lots of hair below brush, combs, bathroom, sinks, and yes, on the floors. And then one sees balding. Yes, patches are coming up. Bald patches are coming up. जी. Hair is thinning out. Patients they do complain, doctor पहले इतनी बड़ी मोटी चुकी है पतली हो गई. So these are the symptoms that one sees. Actually, one loses 100 hair per day, which is very normal and That's very normal. that's normal hair loss. It's more than that, and when one notices thinning of the hair, then one should be the thing should be taken care of. Why it's so? What is the cause? So doctor, अभी हमने बात की कि there are certain risk factors for alopecia. उसके अंदर genetics था, stress थी. So are there certain factors which can prevent the progression? क्या हम treatment की तरफ जाएंगे या फिर incurable है या you just have to deal with it? तो आप क्या clinically तो देखते आपने हैं? एलोपेशिया की बात की, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं. तो एलोपेशिया, एक तो एलोपेशिया एरियाटा, वो उसके अलग कॉज है. एक जो जनरलाइज हेयर थिनिंग है, जो मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, उसके लिए प्रिवेंशन
यस किसी हद तक कर सकते हैं, बट इट्स मोस्टली जेनेटिक जी और ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस। सो उसका ये है कि शुड हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल और शुड हैव अ हेल्दी स्टाइलिंग ऑफ द हेयर, caustic chemicals or sperming or dyeing or straightening or ammonia really damages the hair. yeah, things like that, strong shampoos or sulfate Sulfate containing free. shampoos and stuff like that can damage hair. But prime things are three. One should have to have a good flock of hair, one should have a good and a balanced diet. For By sure. balanced diet, I mean there should be enough of meat, veggies, lentils, fruit, dairy, Any and particular protein. vitamins that we should really look out for? Yeah, why we advocate for a balanced diet? And what is a balanced diet? By Ji. balanced diet, I mean there should be enough of meat, veggies, as I was just saying. Why? Because proteins are coming from meat, vitamins from fruits, and calcium from milk, and so on and so forth. So all these vitamins are essential. But yes, one should look for if there is excessive hair loss. तो किसी को देखना चाहिए जिंक डेफिशिएंसी तो नहीं है, Vitamin E नहीं है, फेरेटिन vitamin नहीं E है, से। वाइटामिन ई, लेकिन जिंक, फेरेटिन, बायोटिन और B12 ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आयरन की कमी से, एनीमिया से बड़ा हेयर लॉस होता है, फेरेटिन की कमी से होता है, बायोटिन की कमी से, जिंक की कमी से, और वाइटामिन D3 भी इसमें हमने देखा है कि उससे भी कम होता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो उसके लिए बेहतरीन है कि बैलेंस डाइट लें तो सब कुछ मिल जाएगा। और फिर सप्लीमेंट्स होते हैं और दूसरा नींद अच्छी होनी चाहिए अगर प्रिवेंशन चाहें, और फिर स्ट्रेस कम से कम। तो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कॉस्टिक केमिकल्स, हार्श केमिकल्स नहीं लग रहे हैं, डाइट अच्छी है, नींद अच्छी है, स्ट्रेस लेवल हाई नहीं है, तो उसको अच्छी तरह से हम डिले कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं कि नहीं है। जी। सो डॉक्टर, हेयर लॉस को कंटिन्यू करते हुए मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान्स क्या हैं जब कोई आता है विद एक्सेसिव हेयर लॉस। तो फॉर एग्जांपल किस स्टेज में हम कहते हैं कि नहीं आपका मेडिकेशन से हो जाएगा, नहीं आपको लेज़र की ज़रूरत है, या फिर आपको PRP प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो आजकल आई हर्ड इट्स द न्यू फैड, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इट। ऐसा है कि हर ट्रीटमेंट हर पेशेंट के लिए अलग होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक टेलर्ड अप्रोच होनी चाहिए हर पेशेंट की। एक होती है ब्लैंकेट अप्रोच, जैसे ब्लैंकेट अप्रोच, ब्लैंकेट हर इंसान के लिए एक साइज का होता है, लेकिन कपड़े हर एक के लिए अलग होते हैं। इसी तरह देखना होता है कि जो पेशेंट है इसका हम खाली प्रिवेंशन दें, सप्लीमेंट्स दें, मिनॉक्सिडिल दें तो उससे रुक जाएगा, या इतना लॉस हो चुका है कि इनको PRP की ज़रूरत है, और ज़्यादा लॉस हो चुका है तो फिर रीजेनरा एक्टिवा जिसमें ये रीग्रोथ सेल्स हेयर के डालते हैं वो, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट। हर एक को ये नहीं कह सकते हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, हर एक को ये भी नहीं कह सकते कि सब, तो हर एक के लिए एक अलग तरह से ट्रीटमेंट टेलर करते हैं, यानी उसके हिसाब बनाते हैं। तो उनको प्रिवेंशन बताते हैं, फिर बाज़ दफ़ा हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं कि ये हम सब देखें हार्मोनल लेवल्स कैसी हैं, थायराइड कैसा है, और बाकी मेल फीमेल हार्मोन्स कैसे हैं, वो तो इम्बैलेंस नहीं है। और फिर हमें देखना होता है ये जिंक, फेरेटिन, बायोटिन, D3 ये सब इनकी लेवल्स ठीक हैं, ये करा के फिर हेयर को ट्रीट नहीं मैनेज करते हैं कि अब और नहीं करें और बेहतर रहें, रुके रहें, और फिर रीग्रोथ की कुछ कोशिश करते हैं। मोर इन फीमेल्स उनमें अच्छे चांसेस होते हैं, उनके लिए फिर ये चीज़ें हैं, डर्मा रोलर है, PRP है, रीजेनरा एक्टिवा है, और फिर अगर टोटली बॉल्ड हो गए तो फिर हम ट्रांसप्लांट का भी सोच सकते हैं। अच्छा, लेकिन एज सच आजकल जो न्यू ट्रेंड की एवरीबॉडी वांट्स टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट, थोड़ी सी गॉन, सो यू आर सेइंग कि देयर आर पर्टिकुलर इंडिकेशंस लोगों हेयर ट्रांसप्लांट इज द लास्ट ऑप्शन, पहले और चीज़ें हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट जनरली फीमेल्स में अवॉइड ही करते हैं, उनके में वैसे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं PRP से, डर्मा रोलर से, माइक्रोनीडलिंग से, रीजेनरा से, रीजेनरा एक्टिवा जो ऑटोलोगस माइक्रोग्राफ्टिंग है, हेयर की रूट्स लेके वही लगा देते हैं। तो इन चीज़ों से अच्छे रिजल्ट्स यूजुअली मिल जाते हैं और इन फीमेल्स। तो हमें हर एक का अलग अलग देखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें कॉज देखें, गिर क्यों रहे हैं उसको तो रिमूव करें, कॉज के बाद फिर हम ट्रीटमेंट टेलर करते हैं कि भाई आपको किस तरह से हम मैनेज करेंगे। डॉक्टर, हमने बात की हेयर लॉस की, और फॉलोइंग दैट एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना जो बहुत ही यंग एज से शुरू हो जाता है वो है डैंड्रफ। जी,
तो डैंड्रफ अगेन इट्स कॉज्ड बाय फ्लेक्स जो सरफेस पे होते हैं आपके स्कैल्प की, और वो फ्लेक ऑफ इवेंचुअली होते हैं. सो डॉक्टर, डैंड्रफ की मार्केटिंग में भी अगर मीडिया में भी देखें तो मोस्ट कॉमनली कहते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, यू नो, however they're marketed, whatever that they're said. So do you think कि scalp treatments जैसे shampoos और यही effective है डैंड्रफ के लिए, या do you think dandruff is just something that has to be managed और उसकी treatment है ही नहीं? Right. So again, dandruff is an extremely common problem. जी. शायद ही कोई ऐसा हो जिसको dandruff नहीं रही हो कभी. और एक ये वही जैसे मैं कहता misconception ये कि dandruff से बाल गिरते हैं. dandruff से बाल नहीं गिरते हैं. अगर dandruff से बाल गिरते हैं तो पूरी दुनिया गंदी होती है. क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुझे dandruff नहीं रही थी कभी ना कभी. A very very minor nuisance. और dandruff डिपेंड करता है, हल्की फुल्की है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी ठीक हो सकती है. अच्छी बात यह है कि ये मॉइस्चराइजेशन से भी ठीक रहती है डैंड्रफ या खुश्की जिसे कहते हैं. अगर ये थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल इस तरह का कुछ कभी कभी वंस ट्वाइस अ वीक डाल लें उससे भी कंट्रोल रहती है. ज़्यादा है तो थोड़े दिन तक वो स्टेरॉइड लोशन देते हैं और 5 दिन में ख़त्म हो जाती है. फिर मैनेज कर लेते हैं हम मॉइस्चराइजेशन से और माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, और बीच में अपने शैम्पू यूज़ करते रहें जी. ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं कि थ्राइस अ वीक ये कर लिया और थ्राइस अ वीक अपना रेगुलर शैम्पू यूज़ कर लिया. क्योंकि अक्सर एंटी डैंड्रफ शैम्पू बालों को ज़रा ड्राई छोड़ जाता है. जी बिल्कुल. तो इसलिए आम दिनों पे अपना कर लें और चाहे तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बाद अपना कोई माइल्ड सा कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं. जी. तो डॉक्टर, मेरा मेन सवाल ये था कि डैंड्रफ की कोई ट्रीटमेंट है या डैंड्रफ की सिर्फ मैनेजमेंट है? डैंड्रफ बस एक तरह की खुश्की है और उसको जब ठीक कर दें है अगर तो माइल्ड स्टेरॉइड लोशन से ठीक कर देते हैं 5-10 दिन में. फिर जब ठीक हो जाए तो उसको मैनेज करते हैं, ठीक रखते हैं. कैसे? शैम्पू से. ज़्यादा है तो कभी एक आधा ऑयल डाल लिया. That's it. Okay. तो अगेन कॉजेज ऑफ डैंड्रफ पे आ जाते हैं तो काफ़ी बार लोगों को लगता है कि इस बिकॉज ऑफ पुअर हेयर हाइजीन, कि बालों को साफ नहीं रखना है, इस वजह से आ रहे हैं. और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से भी आपने बात की कि वो यूज़ होते हैं, कभी और स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं. तो आर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज इफेक्टिव? लाइक शुड द पब्लिक बी लुकिंग टुवर्ड्स क्लीनिंग इट या मॉइस्चराइजिंग इट हेयर? बहुत चीज़ें. हमारा जो सीबम बनता है जी, ये नहीं हम हटाएं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से बोरिया डैंड्रफ जमा होनी शुरू हो जाती है, ग्रीसी डैंड्रफ होने लगती है. तो क्लेंजिंग तो बहुत ज़रूरी है. जी. अक्सर लोग समझते हैं कि बाल धोने से गिरते हैं. तो क्लेंजिंग एक्सेसिव हेयर वॉशिंग स्पेशली जो कॉमन कंडीशंस होती हैं उनमें मिसकंसेप्शन बहुत होते हैं. जैसे एक्नी कॉमन कंडीशन बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये हल्के से हो जाती है, बोट से हो जाती है, उससे हो जाती है, उससे हो जाती है. एक एज में सबको आते हैं. इसी तरह हेयर फॉल इज सच अ कॉमन कंडीशन, इसमें तो होने ही होने मिसकंसेप्शन. तो लोग कहते हैं हम तो बाल हफ्ते में एक बार धोते हैं कि गिर ना जाए. तो सफाई इस्लाम में भी है कि सफाई रखो. तो क्लेंजिंग से सफाई से नहीं गिरते हैं. धोने से गिरते तो सबसे पहले दाढ़ी मूछें गिरती, मुँह रोज़ धुलता है तो वो गिर जाती. वो तो गिरती नहीं है, तो पलकें गिर जाती हैं. वो धोने से गिरती हैं तो मुँह तो ज़्यादा धुलता है ना. तो आपके तवस्सुत से दवाई.pk के तवस्सुत से ये बता दूं कि सफाई या क्लेंजिंग या साफ रखने से बाल नहीं गिरते. अक्सर लोग एक हफ्ते बाल की क्लेंजिंग यानी शैम्पू यानी 2-3 दिन के गिरेंगे. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. और जैसे कि मैंने बताया कि अगर धोने से गिरें तो मुँह ज़्यादा धुलता है तो पहले दाढ़ी मूछें गिर जाएँ, आईब्रोज गिर जाएँ कि भाई हमारे धो रहे थे हम इसलिए दाढ़ियाँ गिर गई हैं, मूछें गिर गई. तो वो तो गिरती नहीं है. आई लैशेस बड़े सॉफ्ट और नाजुक बाल होते हैं, वो भी नहीं गिरते हैं धोने से. तो ये बात रखें कि सफाई अच्छी चीज़ है. क्लेंजिंग करें, शैम्पू करें. और हमारे यहाँ के जिस तरह से मौसम है इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हीट स्वेट और गर्मियों में बड़ा वो रहता है कि उनको साफ रखें तो अच्छा है. तो बहुत ईजीली आप मैनेज कर सकते हैं अपने बालों को. प्रॉपर क्लेंजिंग रखें, सफाई रखें, माइल्ड शैम्पूज यूज़ करें. और ये नहीं सोचें कि साफ रखेंगे तो शैम्पू करेंगे तो गिर जाएंगे. तो उससे तरह से बहुत ईजीली हम डैंड्रफ को मैनेज कर सकते हैं. और माइल्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, ट्वाइस से थ्राइस अ वीक कर लें, बीच में अपना कर सकते हैं माइल्ड शैम्पू कोई भी. जी. तो डॉक्टर, मेरा अगला सवाल होगा प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर.
ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो मैं फ्रेंड्स और फैमिली में स्पेशली यंगर और मिडिल एज के इन सब में मैं देख रही हूँ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर किसी ना किसी कंप्लेन ज़रूर रही है किसी पॉइंट पे। तो डॉक्टर वो ही है इट्स डिफाइंड एज ग्रेइंग ऑफ हेयर और नॉर्मली कॉकेशियंस में और अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा रिसर्च की है कि 30 ईयर्स से पहले 20 ईयर्स से पहले से डिफाइन किया जाता है। पाकिस्तानी पॉपुलेशन में अभी तक उसकी एज जो है वो डिफाइन नहीं की है रिसर्च में। सो कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, ये क्यों होता है कि सिर्फ सर्टेन लोगों में एकदम से ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है सिर्फ बिकॉज रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं उनके सेल्स, या एग्जैक्टली है क्या जिसकी वजह से ये होता है? जी, हमारे हेयर के रूप में पिगमेंट बनाने वाले सेल्स होते हैं वो पिगमेंट बना के हेयर में इंजेक्ट करते हैं और हेयर डार्क हो जाते हैं जी। और किसी वजह से प्रीमैच्योर ग्रेइंग होने लगती है। उसमें सबसे कॉमन कॉज है जेनेटिक्स। अगर खानदान में हेयर वाइटनिंग है तो जल्द या बदेर बच्चों में भी होगी। फिर अक्सर कोई सीवियर स्ट्रेसफुल एपिसोड आई, कोई बहुत ही ट्रॉमा या टेंशन या स्ट्रेस रही, उसमें भी अर्ली ग्रेइंग हो जाती है। फिर जैसा कि मैंने बताया कुछ विटामिन सी की कमी से भी अर्ली ग्रेइंग हो जाती है, जैसे जिंक या फेरेटिन या कोई भी और बहुत सारे विटामिन हैं उनसे भी हो जाती है। बुखार के बाद, कुछ इलनेसेस के बाद, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के बाद ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है। और लेकिन सबसे कॉमन कॉज है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में ग्रेइंग है तो बच्चों में भी अर्ली ग्रेइंग हो सकती है। और ये जो इनहेरिटेंस में है तो उसमें एज की कोई कैद नहीं होती। जैसे किसी के फादर को अगर 50 साल की उम्र में चश्मा लगा है तो बच्चे को ग्रेड 3 में भी चश्मा लग सकता है। यानी कि बच्चे को चश्मा कैसे लग गया। या किसी के डायबिटीज़ है, फादर को अगर 50 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो गया तो बच्चे को अनयूजुअल है, लेकिन 10 साल की उम्र में भी हो सकती है। या तो इसमें इसी तरह अगर ग्रेइंग है फैमिली में तो बच्चों में स्टार्ट हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन वजूहत थी ग्रेइंग की, अर्ली ग्रेइंग की। तो डॉक्टर अगर हम लोग प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर देखते हैं तो मोस्ट कॉमनली फिर लोग जाएंगे हेयर डाइज की तरफ ऑब्वियसली, ताकि अपना कलर जो है हेयर का रिस्टोर कर सकें। तो डॉक्टर फिर वो लीड्स टू हेयर लॉस एक्सेसिवली, तो क्या ट्रेड ऑफ क्या है फिर, लाइक डू वी लीव आवर हेयर टू ग्रे जिन लोगों को है, या फिर हेयर डाइंग फिर शुरू कर दें क्योंकि सिर्फ वही है। हेयर डाइंग पूरी दुनिया करती है, उससे हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आपको डाई सूट नहीं कर रही है तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है, तो डाई चेंज कर लें। और ज़्यादा हो रहा है तो फिर हर्बल हेयर कलर लगाना है। अगर आपको सूट कर रहा है, सब कर रहा है, इरिटेट नहीं कर रहा है, एलर्जी नहीं कर रहा है तो हेयर कलर लगा सकते हैं। उसमें शुरू या प्रॉब्लम हेयर कलर से बस बाल का टेक्सचर खराब हो जाता है, लेकिन फिर हेयर की ग्रोथ आ जाती है। जैसे ये बड़ा स्मूथ है जो है लेदर है, इस पर अगर कोई भी रंग लगा दें तो इसका जो लेदर है इसका टेक्सचर खत्म हो जाएगा, फिर वो कलर का टेक्सचर फील करेंगे। तो हेयर पे जब रंग चढ़ जाता है तो बाल का टेक्सचर खत्म हो जाता है, हेयर का टेक्सचर आ जाता है। तो उसमें फिर कंडीशनिंग करें तो ऐसा जैसे कोई भी लिपस्टिक लगा लें, कुछ लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह बाल पे कलर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यस, अगर कलर एलर्जी कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, खराब कर रहा है इसके तो फिर चेंज कर लेना चाहिए। ये नहीं कि खराब कर रहा है फिर भी वही लगा दें। तो वाइटनिंग का ये कि प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ अच्छे इस तरह के वाइटमिन्स होते हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वाइट बाल को काला करने की कोई दवा नहीं। जो हो गए वो हो गए। प्रिवेंशन है कि कुछ इस तरह के वाइटमिन्स, कुछ इस तरह के शैम्पूज आते हैं जो फर्दर ग्रेइंग को डिले कर देते हैं। जी, स्पेशली डॉक्टर प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में बहुत ही कॉमन है कि इट अफेक्ट्स आवर साइको सोशल लाइव्स। अगर बहुत ही यंग लोगों में 16-17 ईयर ओल्ड से शुरू होता है तो दैट इज द टाइम व्हेन पीपल एक्चुअली केयर फॉर देयर हेयर, दे फ्लॉन्ट देयर हेयर, दैट्स द टाइम। तो उसमें जब होता है तो वो जो सजेस्ट ये जब यंग एज में हो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है और काफ़ी यंग बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि क्या करना है। तो उनकी काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं, कुछ स्टाइलिंग बता देते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें बता देते हैं जिससे वो मैनेज करें और बताते हैं कि इट्स ओनली a nuisance। ओके, सो डॉक्टर आजकल लेज़र हेयर में
फीमेल लेजर हेयर रिमूवल इज क्वाइट कॉमन, वेरी कॉमनली एक्सेप्टेड आजकल भी कि इट्स इफेक्टिव. फॉर मेन इफ वी आर स्पीकिंग टू बियर्ड लेजर रिमूवल या फिर बियर्ड हेयर रिमूवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इट्स नाउ कमिंग अप. सो माय क्वेश्चन इज how successful is it, or कितनी sittings required हैं, and is it a good way to tame your hair, facial hair for example. And काफ़ी again follow up question would be people think laser से skin cancer होता है और melanomas बढ़ते हैं. So what's your take on that? आप क्या कहेंगे beard hair removal के बारे में ज़्यादा बताते हैं and its relation to skin cancers? हम लोग को पूरी दुनिया में ये लेजर हेयर रिमूवल करते हुए रहे हैं 20-25 years से. मोहम्मद भी roughly 22 years से कर रहा हूँ. और लेजर इज सच अ सेफ थिंग कि पूरी दुनिया में उससे आँखों की सर्जरी करते हैं कि करते हैं. तो जब आँख को कर सकते हैं लेजर से ट्रीट, तो ये अनवांटेड हेयर की दुकान में कोई वैल्यू नहीं है. तो लेजर से ऐसा कुछ नहीं होता है और कि कैंसर हो या कुछ, बिल्कुल भी नहीं. और ओनली ऑप्शन नाउ डेज इज लेजर रिमूवल. दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं. इलेक्ट्रोलिसिस किसी वक्त बनती थी, अब तो तकरीबन खत्म हो गई है, सिर्फ वाइट वालों के लिए होकर रह गई है. तो लेजर इज अ वेरी इफेक्टिव वे एंड आई वुड से द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड हेयर. मेल्स में भी इतना ही इफेक्टिव है, बल्कि कहूँगा थोड़ा से ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. इसलिए कि जितना हार्ड हेयर हो वो उतना ईजीली चला जाता है, जितना फाइन हेयर हो उतना मुश्किल से जाता है. क्योंकि बियर्ड का हेयर बड़ा हार्ड होता है तो वो बहुत इफेक्टिवली चला जाता है. बहुत 20 साल से कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. थोड़े बहुत रैशेस, रेडनेस, थोड़े बहुत कभी कभी जिस तरह के केसेस हो जाते हैं वो वक्ती होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक हो जाते हैं. लेकिन अदरवाइज या लेजर इज़ अ वेरी वेरी proper or effective or very result oriented thing or being done for so many years. तो definitely recommend करेंगे लोगों को. इस तरह की कोई चीज़ होती है कि कोई कैंसर करेगा तो बाकी दुनिया में तो फौरन बैन लग चुके हैं. तो आज तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसा चांस है. बहुत इफेक्टिवली पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन कराची और पाकिस्तान और बहुत इफेक्टिवली यूज़ हो रहा है. जी. तो डॉक्टर now we'll come to the skin aspect of it. जी. तो hydrofacial आजकल I'm hearing about it a lot and I guess it has been done for about 4 to 5 years now at least mainstream culture में. तो hydrofacial basically जो लोग market करते हैं, जो करते हैं, they say that it improves the texture or the tone of the skin itself. तो ये होता है deep exfoliation की वजह से जो कहते हैं. So hydrofacials कितने करवाने चाहिए एंड माइक्रोडर्माब्रेशन भी है जो आजकल उसकी जाती है, वो उससे कितना डिफरेंट है और कब आप प्रेफर करेंगे वन और द अदर? ये दोनों एक ही चीज़ है. माइक्रोडर्माब्रेशन और हाइड्रोफेशियल थोड़ा सा फर्क नहीं होता है और दोनों का एक ही काम है कि टॉप लेयर हटा दें. जी. तो जब नीचे से नए लेयर्स ऊपर, जैसे स्किन की चोट लग जाए, स्किन छिल जाए, हट जाए, नई बन जाती है, तो स्किन रिजेनरेट करती है अपने आप को. हम जब ऊपर के लेयर्स हटाते रहते हैं, नीचे से नए लेयर्स आते रहते हैं, तो स्किन फ्रेश हो जाती है. और उसमें पीलिंग में या स्किन हटाने में या डर्मेब्रेड करने में ब्लैमिशेस भी निकलती रहती हैं, कोई दाग हैं, कोई धब्बे हैं, कोई फ्रैक्चर्स हैं, उस तरह की चीज़ें वो भी लाइट होती रहती हैं. तो ऊपर के लेयर्स हटते रहते हैं, नीचे के आते रहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है. और इसका कोई वो नहीं है कि आपको 5 कराने पड़ेंगे या 10 कराने पड़ेंगे. जितना आप once a month, twice in a week, once a month आप लेते रहें. और हाइड्रोफेशियल में वही माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ हाइड्रेशन भी डाल दिया, उसमें कुछ सीरम्स भी डाल देते हैं टाइटनिंग के, लाइटनिंग के. तो एडिशनल बेनिफिट होता है कि आपने हाइड्रेशन भी दे दी और उसमें कुछ सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो उससे और बेहतर. तो ये 2 स्टेप आगे है डर्मेब्रेशन से. डर्मेब्रेशन ही है लेकिन उसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं. तो स्किन की समझ ली एक्सफोलिएशन है, ये समझ ली पीलिंग है, ये समझ ली फ्रेशनिंग है, और एक अच्छा मूड और एक सॉफ्ट मूड और एक माइल्ड सा ट्रीटमेंट है विच इज़ इफेक्टिव एंड गुड. सो इज देयर अ सर्टेन एज लिमिट कि इसके बाद ही शुरू कर सकते हैं? बिकॉज काफ़ी बार यंगर स्किन जो है वो ज़्यादा जल्दी रीजनरेट करती है, मगर यू नो पीपल वांट दैट फ्लॉलेस लुक.
स्पेशली यंगर पीपल, तो दे वुड जस्ट गो फॉर हाइड्रोफेशियल कि अच्छी स्किन रहे। एंड क्या ये प्रिवेंटिव है या फिर ट्रीटमेंट के लिए के तौर पे यूज होती है? प्रिवेंटिव तो नहीं है, लेकिन अगर कोई फेस पे ब्लेमिशेस हैं, कुछ पोर्स हैं, कुछ दाग धब्बे हैं, नीचे स्टार्स रह गए, मार्क्स रह गए, लाइट गहरे मार्क्स को लाइट मार्क्स रह गए, तो उनको माइक्रोडर्माब्रेशन या हाइड्रोफेशियल व्हिच इज हाइड्रेशन एज वेल, उससे रिमूव कर सकते हैं। और तो एज क्या होगी इसकी तकरीबन? अब देखिए बच्चों को तो नहीं कर रहे हैं जी, आमतौर पर एडल्ट्स में हम रेकमेंड करते हैं, और आमतौर पर उनको करते हैं जिनको एक्ने हो चुकी है, मार्क्स रह गए, ये रह गए, कुछ ब्लेमिश है, तो बच्चों को इसमें तो वैसी होती है ना एक्ने ना कुछ, तो उनमें नहीं है। तो आफ्टर द एज जब एडल्ट गेन कर रहे हैं या कुछ मार्क्स वार्क्स रह गए, तो उन्हीं में रेकमेंड करते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। और वैसे ही करना है तो फिर और देर से करते हैं। जैसे कोई 17-16 ईयर्स का बच्चा है, कुछ एक्ने के मार्क्स रह गए, तो उनको कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर, अभी हमने एक्ने की बात की, तो एक्ने इज जब सीबम जो है वो आपकी ट्रैप हो जाती है पोर्स में, एंड देन उसके ऊपर स्किन जो है वो रीजनरेट नहीं कर पाती। तो आप मुझे बता सकते हैं एक्ने के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं? काफ़ी और लोग एकदम से स्पेशली सोशल मीडिया में आजकल देख रहे हैं कि द एक्ने दैट डजंट गो अवे विद फंगल, विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट गोइंग इनटू इट। तो आप बता सकते हैं कि एक्ने के डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं, ज़्यादातर कॉमनली क्या होती है, और फंगल एक्ने जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं, फंगल एक्ने कुछ नहीं होती है, एक्ने की टाइप जी। तो एक्ने में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स इन हेयर, दाने, पस्ट्यूल्स यानी बस के दाने, सिस्ट, सिस्टिक एक्ने बहुत हाई ग्रेड है, और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ग्रेड 1 है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा वेदर है, यहाँ तो 90% एक्ने वल्गैरिस और इसकी जो होती है वो देखी जाती है। तो इसकी मुख्तलिफ ग्रेड्स होती हैं, और इसमें कोई भी फंगल एक्ने कुछ नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन अलग चीज़ है, एक्ने एक अलग चीज़ है। तो जैसे आप कहते हैं इसको मलेरियल डायबिटीज़ है, तो मलेरियल डायबिटीज़ कुछ नहीं, डायबिटीज़ अलग चीज़ है, मलेरिया अलग चीज़ है। तो तालिबान इसी तरह ये फंगल एक्ने कुछ नहीं है, एक्ने इज टोटली डिफरेंट, फंगस इज टोटली डिफरेंट, नथिंग टू डू। बट एक्ने के मिसकंसेप्शंस बहुत होते हैं, तीन या चार हो जाती है, जितनी कॉमन चीज़ें हमने देखा होती है, कौन चीज़ें जितनी कॉमन बीमारियाँ कंडीशंस होती हैं, उतने ही मिसकंसेप्शन है। और ये चीज़ें चॉकलेट कहते हैं, ये खाने से हो जाती है, वो खाने से हो जाती है, स्पेशल खाना से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फूड इंडेक्स हैज नथिंग टू डू मोर लेस एज कंसेंट, और इसमें मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ऑयली स्किन है, फ्लेक्शन है, ऑयली ग्लैंड्स हैं, उस वजह से होती है। और एक्ने में ये सब चीज़ें होती हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स, सिस्टिक एक्ने हायर की होती है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होती है, ग्रेड 1 होती है। और आपके दवाई पीके के तवज्जुह से ज़्यादा ये एक्ने वगैरह लोग समझते हैं इसका इलाज नहीं है, 100% ट्रीटेबल है। कॉजेस नहीं हटा है तो रिकर कर सकती है, दोबारा हो सकती है। तो देखना होता है क्यों हो रहा है। बाज़ दफ़ा एक्ने का एक्सपोजर होती है, बच्चों को छूने की आदत हो जाती है, उससे हो जाता है। बाज़ दफ़ा हार्मोनल हो जाता है, बाज़ दफ़ा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है, बाज़ दफ़ा मेकअप कॉस्मेटिक्स से कभी वैक्सीन के बाद हो जाता है। तो ये सारे कॉजेस हटा के बिल्कुल रखते हैं, एक्ने बिल्कुल ट्रीटेबल है, ऑलमोस्ट 100% इसका सक्सेस रेट है। तो डॉक्टर अभी आपने बात की एक्ने की 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं अभी मार्केट में, या which are the ones that are commonly used आजकल? एक्यूटेन और काफ़ी सारे लोग एक्यूटेन अवेलेबल हैं। जी, एक्यूटेन देखें, जैसे मतलब हर ट्रीटमेंट है एक गिलास से करते हैं, उसको सिर्फ लोशंस और क्रीम्स देते हैं, कुछ कॉम्बाइंड एंटीबायोटिक्स देते हैं, और सिवियर एक्ने में उसके लिए एक्यूटेन। जी। तो बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, आज से 20 साल पहले कोई ऐसी खास चीज़ नहीं, सिर्फ एक एंटीबायोटिक होती थी, ये दे सकते थे। तो बहुत अच्छे विटामिन डेरिवेटिव्स आ गए हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनसे हम बहुत इफेक्टिवली एक्ने को ट्रीट कर सकते हैं। तो माइल्ड एक्ने होती है तो उसका कुछ है, ग्रेड 2 है उसका कुछ और ट्रीटमेंट है, ग्रेड
ठीक है जो चल रहा है, हाँ सिर पे रखना है ये एक्टिविटी ट्रीटमेंट में। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ सजेशन करके सीरम से ठीक कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और सीवियर एलर्जी एक्यूट है। जी, तो डॉक्टर काफ़ी कॉमन फिनोमेना या तो मिसयूज है वो वर्ड या अटैची केसेस पर्जिंग के नाम से काफ़ी बार कहते हैं कोई ट्रीटमेंट नहीं शुरू करें तो स्किन कंडीशन अगर वर्सन हो तो इसका मतलब है कि पर्जिंग आपकी इवेंचुअली स्किन स्टेबलाइज कर जाएगी। क्या पर्जिंग फिनोमेना एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। जब भी हम एक्ने की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो व्हाटएवर इज इन द पाइपलाइन कम्स आउट, फिर ठीक हो जाता है। ऐसे समझ लें जैसे अगर हम कमरा साफ करना शुरू करें, अगर इसमें कुछ डर्ट है कुछ कचरा है तो पहले बाहर निकलेगा, फिर साफ करेगा, और नहीं है तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर हम एक्ने की ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल शुरू करें और अंदर है पाइप में तो सारे बाहर ठीक हो जाएगा, और नहीं है तो वैसे ठीक हो जाएगा। तो कोई क्या टाइम पीरियड है कि लोग ऐसी कोई अलग मेडिकेशन फॉर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं और लोगों को लगे नहीं पर्जिंग है, मगर पर्जिंग की कोई टाइम लिमिट होगी कि उसके बाद आपको लगे कि समथिंग लाइक ज़रा सा पढ़ सकते हैं, फिर मैनेज लगते हैं 2-3 मंथ्स में खत्म होने लगती है, 4 मंथ्स में यूजुअली खत्म हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा एक्ने में जो स्टेरॉइड की दूसरा लगा देते हैं, ये उससे और बढ़ती है, बढ़ती रहती है। तो गलत क्रीम्स लोशंस लगाने से वो एग्रेवेशन है, वो ट्रीटमेंट है, वो और ख़राब। जी, also people really search a lot online कि जो कॉम्प्लीमेंट रेकमेंडेड है लोग वो सब खुद यूज़ करते हैं विदाउट कंसल्टिंग। दैट इज़ बैड जी। तो आप डॉक्टर गूगल से अवॉइड करें। That's true. जी, तो डॉक्टर से इसके बाद स्किन के बारे में बात करें तो कार्बन लेजर फेशियल्स क्या होता है? I haven't ever heard of कार्बन लेजर या कार्बन फेशियल, इसमें कार्बन लिक्विड फेस पे लगाते हैं और फिर एंटी लेजर से उसको लगाते हैं। कार्बन जब लिक्विड लगता है तो सारी जो पोर्स सब चीज़ों को अंदर जज़्ब कर लेता है। जैसे डॉटिंग पेपर होता है, दिया जाए तो डॉटिंग पेपर पढ़ते थे और सारा एक डॉटिंग पेपर जज़्ब कर लेते थे, पेपर फेंक देते थे। इसी तरह से जो भी थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी थोड़ा बहुत चीज़ें हैं थोड़ा बहुत हल्का डीप इन्फेक्शन है, हल्के फुल्के के मसले हैं, तो कार्बन लिक्विड लगाते हैं, 10 मिनट सुस्त हो जाता है, फिर एंटी लेजर से उसको लास्ट कर देते हैं, सब सही चीज़ों से साथ ही निकल जाती है। तो वो स्पेसिफिक टारगेट क्या कर रहे हैं? सेपरेट हाइड्रेशन का टेक्सचर पे वर्क कर रहा है, तो कार्बन लेजर फेशियल किस चीज़ पे वर्क कर रहा है? ये तकरीबन सब चीज़ें एक ही काम है कि माइक्रोडर्माब्रेशन या हाइड्रेशन एक समझने के लिए है। तो माइक्रोडर्माब्रेशन एक पीलिंग है, हाइड्रोडर्माब्रेशन यानी ये जो फेशियल हाइड्रेशन को हाइड्रोडर्माब्रेशन भी कहते हैं। इसमें पीलिंग के साथ साथ सीरम्स भी डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, हाइड्रेशन भी दे सकते हैं, इससे सॉफ्ट और सब स्मूथ लगे। और कार्बन फेशियल या कार्बन पील्स में यूजुअली हम टारगेट करते हैं ज़्यादातर डीप पिगमेंटेशन वाला लाइट है या एक्रीनिक सेलाइट, तो उसमें वो सब क्लॉट पोर्स में कार्बन जो लिक्विड होता है उसमें जस्ट लग जाता है, फिर उसको जब बढ़ा देते हैं उसके साथ ही निकल जाता है, फिर ज़रा फ्रेश स्किन नज़र आती है। तो आगे पीछे सबका जब काम मुख्तलिफ मोड्स हैं, मुख्तलिफ इंडिकेशन है किस में अगर बहुत ड्राई स्किन है उसमें माइक्रोडर्म किया तो स्किन ड्राई और खराब लगी, तो उसमें हाइड्रोडर्म करना है, एक्ने स्कार्स ज़रा डीप है तो कार्बन पील्स या कार्बन फेशियल का कार्बन लेजर्स में होंगे। तो थोड़ा सा डॉक्टर को जज करना पड़ेगा कि इस पेशेंट से इस पर्सन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर साबित हो। जी, तो अब फेशियल के बारे में बात करें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी और थेरेपी स्किन लाइटनिंग मेथड है that's used lightening or brightening for example skin energy waves are used and they take care of the skin। तो अभी हमने बात की कि लेजर जो है that's completely safe, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी is also safe और इसके देखिए ये लेजर में रेडियो फ्रीक्वेंसी लेजर्स कंप्लीटली सेफ
नहीं सेफ है, बस पेशेंट को सेलेक्ट करना होना, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, ये नहीं कि हर खड़खड़ को लेजर कर दे, जी इसकी स्किन खराब कर दे। तो हर चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और प्रॉपर हो, फिर इंसान लेजर यूज़ कर सकता है। और दूसरा बात आपकी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एक चीज़ समझी जाती है स्किन टाइटनिंग के लिए, और स्किन के थोड़े बहुत गिल्टी के साथ अगर माइक्रो नीडलिंग हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ हो तो वो और अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी, उसमें इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो किसी चीज़ को कुछ लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ टूल्स हैं स्किन की बेटरमेंट के, तो ये डॉक्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी कम करें, कार्बन पील कम करें, हाइड्रोफेशियल कम करें, केमिकल पील कम करें, सीओ लेजर्स कम करें, और भी विस्तार से सीओ लेजर्स करें। so that's सरफेस और फिर RPM ये लेजर है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डिस्कस करके डॉक्टर उसका देख के स्किन का टेक्सचर और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या बेहतर रहेगा। तो मगर हमने अगर डेंजर्स के बारे में बात की है, सो देयर जस्ट एज सेफ एज लेजर रेडियो फ्रिक्वेंसी जी बिल्कुल नो अगर प्रॉपर आपको करना आता है, प्रॉपर है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जी और again my next question would probably be the most frequently done and the most frequently wanted, that's Botox. जी तो Botox injections होते क्या हैं, उनके अंदर होता एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और थेरेप्यूटिकली कहाँ जिसम पे यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर तो लोग फेस पे कॉस्मेटिक रीजन से लिए करवाते हैं, या फिर इस बोटॉक्स यूज समवेयर एल्स, और दूसरा क्या होगा सेफ है या नहीं बोटॉक्स। जी देखिए ये बोटुलिनम टॉक्सिन है, और बोटॉक्स हम इसको करते हैं फॉर कॉस्मेटिक यूज़, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम फोरहेड रिंकल्स के लिए करते हैं, क्रोस फीट के लिए करते हैं, हम फेस स्लिमिंग के लिए करते हैं, जॉ लाइन टाइटनिंग के लिए करते हैं, नोज़ अगर चौड़ी है यानी नोज़ फ्लैप उसको पतला करने के लिए करते हैं, लोअर आईलिड रिंकल्स के लिए कर सकते हैं। फिर बोटॉक्स पोर टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, फिर बोटॉक्स स्वेटिंग के लिए यूज़ होता है, अगर हाथों में स्वेटिंग हो ये अंडर आर्म्स में उसके लिए यूज़ होता है। इतनी सारी इसकी चीज़ें हैं कि कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, आपको पता है फेस की एनाटॉमी के किस मसल्स को ये टारगेट करती है, उस किस मसल पे लगाना है, तो इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव, वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड एंड वेरी सेफ। अब थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं, रेडनेस, स्वेलिंग और जी इसकी वजह से बैड रेपुटेशन से थोड़ा बहुत मिल रहा है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल, ओनली पीपल हु इन द मीडिया शुड गेट इट डन। वुड यू रेकमेंड बोटॉक्स फॉर एनीवन हु इजंट हैप्पी कि ये थोड़ा कम है, ये करवाएं, या इज इट समथिंग दैट्स these things are done on patient's demand. If one is not happy with his or her nose, या कोई बोले मेरी थोड़ी आईब्रो लिफ्ट कर दो, ये रिंकल्स का काम कर दो, कर सकते हैं, कोई इसमें हेजिटेशन कंप्लीटली सेफ है। अगर देख लें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो यस वन कैन गो बोटॉक्स ट्रीटमेंट। और मोस्ट कॉमनली डन कॉस्मेटिक प्रोसीजर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज बोटॉक्स, और पिछले 20 साल से हो रहा है बहुत इफेक्टिवली एंड वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। या सो डॉक्टर फॉलोअप क्वेश्चन वुड बी लिप फिलर्स दैट बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है आजकल, सोशल मीडिया पे उसके बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिप फिलर्स, और ये डिसॉल्वेबल सारे होते हैं? फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू बैक ट्रैक एंड से अब मुझे फिलर्स नहीं चाहिए, इज इट ओके, और व्हाट आर इट्स जी लिप फिलर्स हम लोग यूज़ करते हैं, वो एच फिलर होते हैं, ऐसे फिलर विच आर रिवर्सेबल। हमने अगर कर दिए किसी को लगे कि ये ज़्यादा बड़े लिप कर दिए तो वो काम कर सकते हैं, वो नहीं कम हुआ हमें थोड़े से और चाहिए तो और कर सकते हैं। तो these are all reversible fillers and absorbable fillers, थोड़े दिनों में ये absorb हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और जब भी कोई चाहे कि मुझे नहीं करना है तो नहीं करें। जैसे आज किसी ने अगर लिपस्टिक लगा ली, अगर उसको लेने चाह रहे नहीं लगानी तो नहीं लगाए, ज़रूरी है कि आपने एक बार लगा लिया फिर लिपस्टिक तो लगानी पड़ेगी।
तो ज़रूरी नहीं आज आपने फिलर से लगा लिए तो आपको सारी बार लगाने पड़ेंगे। आप लगाएं तो टोटली आपका अपना चॉइस है। तो डॉक्टर ये सेफेक्ट्स काफ़ी बार ऐसी इमेजेस ऑफ पीपल जिनकी ब्रूजिंग हो जाती है काफ़ी बार अराउंड द रिस्ट। देखिए ब्रूजिंग हो सकती है, ब्रूजिंग इज नथिंग। ब्रूजिंग क्या होती है? हमने एक इंजेक्शन यहाँ डाला और उसको पुश किया और फिर डाला और आगे निकाल दिया। अगर रास्ते में वो सीट में कहीं ब्लड वेसल हिट कर दिए तो उसके अंदर ब्लड जम जाता है, उसको ब्रूजिंग कहते हैं। और ये ब्रूजेस विदाउट ट्रीटमेंट को चले जाते हैं, तो उसको कोई ऐसा बिल्कुल हो सकते हैं, ब्रूजेस हो सकते हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट को गायब हो जाते हैं। Okay. And sometimes can the filler go very wrong and can it actually hurt someone? बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन हो गया तो बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उन सबके फिर अगर साइड इफेक्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं, वो रेयर होते हैं लेकिन हो सकते हैं, तो लेकिन उनको भी मैनेज किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो मेरा लास्ट सवाल आपके लिए यही होगा कि व्हाट आर सम 5 बेस्ट बिट्स ऑफ स्किन केयर एडवाइस जो आप लोगों को दे सकते हैं, या कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों को बता सकते हैं कि नहीं करें, बोथ डू एंड डोंट्स, अगर आप जी जस्ट समराइज एज करें। फार एज स्किन इज कंसर्न मैं यही कहूँगा कि अच्छी तरह स्किन को साफ रखें, क्लेंजिंग करें। दूसरा, धूप से बचें, जो सन की रेज होती हैं ये बड़ी डैमेजिंग है। आज से कुछ अर्से पहले तक हमारे पास इतना ये नहीं पहुंचती थी यूवी रेडिएशन, लेकिन अब ज़्यादा पहुंच रही है। जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट यानी कम होता जा रहा है, तो ये ज़्यादा पहुंच रही हैं। तो उसके लिए सनब्लॉक लगा के रखें, नींद पूरी लें, डाइट अच्छी रखें और रिलैक्स रखें अपनी नर्व्स को। ये 4-5 चीज़ों का ख्याल रखें तो स्किन अच्छी रहेगी। मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है, सन से बचना बहुत ज़रूरी है, स्मोकिंग अवॉइड करें, डाइट अच्छी है, नींद अच्छी है। Thank you very much. Thank you, Doctor, for joining us for this live session. It was lovely having you. Thank you for taking out the time for this session. It was very enriching. I learned a lot, and I hope the viewers have as well. If you have any questions, do drop them down below, and we hope to have you again soon. Thank you.